Okay. Rima. जय सचिदानंद। દાદાનો ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, ભક્તિ રસમાં લાગું છે, ભક્તિ રસમાં લાગું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મને જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારો બન્યો વકારો, જીવન મારું બન્યો વકારો, દાદા જેવો દાદા ચરણોમાં રહેવું છે, દાદા ચરણોમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મને પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવો મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ દાदा. जय सच्चिदानंद प्रभु केम छो? हाँ मजा में थोड़ा टाइम है तो बच्चों का क्विज करेंगे थोड़ा. चलो चेन्नई 9 कलम बोलो. नंबर 1. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધૈર્યદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દવે ના દુબાય દુબા કરે ના અનુદાન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધૈર્યદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દવે
એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 2, Karishma. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ ના દુબે ના દુબાય દુબા પ્રત્યે ના અનુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સારવાદ વાણી, સારવાદ વર્તન, સારવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 3, Khushi. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી યા આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 4, Prahar. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય એ કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Navnidhi, number 5. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, ચંટેલી ભાષા ના બોલાય, ના બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, ચંટેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચિ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. Ahmedabad, number 6 and 7. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Arush, number 8. હા, Number 8. Column number 8. Arush, સંભળાય છે? હા, નંબર 8મી કલમ બોલો. નહીં આતી. કેમ? પ્રહર, નંબર 8મી બોલો. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. દિવ્યા, નંબર 9 કલમ. હે જગત કાન મળે હે દાદા ભગવાન મળે ખડ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड. एवरी बच्चे पसंद पाया आपको नंबर 9? હા, वेरी गुड दिव्या. ओके, कैसे दादा आपको पसंद पड़ा नंबर 9? बहुत अच्छा. वेरी गुड दिव्या. ओके, अभी कैसे दादा 3 मंत्र बुलाइए प्लीज. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો હરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो उवज्जायाणम, નમો ઉવજ્જાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોય સવસાહનમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सव पावपणासनो,
सर्वपावपणो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च नव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आरुष, आपको 9 कलम एकदम पक्की करने का है। हाँ 2 दिन की बाद आपका टर्न है स्कूल बोलने का, ओके? हाँ वो ये नहीं चलेगा, ये तो आना ही मांगता है। तो खाना पीना सब बंद करो, नहीं आएगा तब तक। हाँ। ओके चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर युक्ति साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तवान वचन कायो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकारी यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल से प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवीय बनता हूँ। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा घर आज पे? हाँ, आज थोड़ा मम्मी के साथ दुख गया था। क्या हुआ? मम्मी के साथ आज काम के वक्त चिक हो गई थी मेरे साथ। नहीं सुनाई देता है। मम्मी के साथ आज मुझे काम में चिक हुई थी। आपको अभी एवरीडे होता है, क्या करेगा आपको? आपको निकालने का घर को मम्मी को निकालने का, किसको? वो सोचना, कल बताना किसको जाना पड़ेगा घर में से। ओके, पापा को पूछो। तो बोलो पापा क्या बोलते हैं। ओके ओके। अहमदाबाद खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जैसे आज टीम वर्क है दिव्या और नवनिधि। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल है सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। देखो दिव्या, દાદા કે ને સાથે કરવાનું, ટીમ વર્ક એટલે બંને સાથે બોલવાનું. ઓકે, પપ્પા તમને સમજાવી દેજો. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ओके, अभी हम देखेंगे। आज तो संडे है केशव दादा, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने पढ़ाई नहीं किया, किसी ने दादा का सत साधन नहीं किया। तो इसलिए हम अपना नियम देखेंगे। लास्ट 9 डेज में नियम कितना दिन रहा नहीं रहा वही बताने का है। एक नियम बोलने का और कितना दिन रहा नहीं रहा वही बोलने का। ओके प्रहर,
हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे एक्सरसाइज मिनिमम 15 मिनट करनी है। तो आज मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज किया था। नहीं नहीं, आज की बात नहीं कर रहा है, वो लास्ट 6-7 दिन में क्या हुआ वो बोलेगा। मोनिका दीदी, मैंने वीक में सारे दिन एक्सरसाइज मिनिमम 15 मिनट से ज्यादा की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलने का। रिपोर्ट ऐसे देता है आप टीचर को। 7 दिन में कितनी दफा किया 7 एक्सरसाइज? में से 7 बोलो। 7 में से 7 किया था। हाँ, और दूसरा 7 नंबर में 2? से 7। नंबर 2, वेरी गुड। बोलो नंबर 2। मेरा दूसरा ये था, मेरा दूसरा नियम ये था कि सारे संसाधन करना है। सारे संसाधन करना है, तो उसमें मेरा 2 आउट ऑफ 7 है। 2 आउट ऑफ 7। और मेरा तीसरा नियम ये है कि मम्मी को मतलब होमवर्क खुद कर लेने का। तो 7 में से 7 हो। ओके, वेरी गुड। और उठ बैस? उठ बैस किया था, 7 में से 7 सारे दिन किया था। तो रिपोर्ट भेजो, ऐसे बोलो कि मोनिका दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा जोर पहला से बोलो, नियम जोर से बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे एग्जाम्स मैथ्स में करने थे, जिसमें मैंने 7 डेज में 4 डेज ही किया था, 7 आउट ऑफ 4। और दूसरा नियम ये है कि मुझे सुबह 5 o'clock को उठना है, तो उसमें मैंने 7 में से 6 दिन उठ पाई थी। और मेरा थर्ड नियम ये था कि मुझे संसाधन 25 आउट ऑफ 25 करने हैं। तो इन 7 दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही कर पाई, 7 आउट ऑफ 1। और मेरा फोर्थ नियम है कि मुझे कॉलम 1 ब्रेक नहीं करनी है, तो उसमें मेरा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, उसमें सिर्फ 0 आउट ऑफ 7 है। और मेरा फिफ्थ नियम है कि सिटअप्स उठक बैठक करना, तो उसमें मैं 6 आउट ऑफ 7। ओके, नियम का मालूम नहीं है आपको, कुछ चेंज करना पड़ेगा का नियम का। करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नो कलम आज मैंने एक बार की थी, त्रिमंत्र आज मैंने एक बार की थी, और हेयर एक्सरसाइज आज मैंने 20 टाइम्स की थी। तो ये आज छुट्टी है? त्रिमंत्र का छुट्टी लिया है? नहीं। खाना खाया था? हाँ। क्यों? खाने के पहले आप नेक्स्ट त्रिमंत्र को कर सकते हैं। खुशी, मेरा पहला नियम ये था कि मुझे मैथ्स में 20 सम्स करने थे, तो मैंने उसमें 7 आउट ऑफ 3 डेज ही किए थे। नो और ऐसे बोलो 3 आउट ऑफ 7। सॉरी 3 आउट ऑफ 7। और मेरा सेकेंड नियम जल्दी उठने का था 6 o'clock को, तो मैं एक दिन ही उठ पाई, तो 1 आउट ऑफ 7। और मुझे 25 आउट ऑफ 25 कंप्लीट करने थे, तो आज ही मेरे फुल संसाधन हुए, तो 1 आउट ऑफ 7। और सिटअप्स उठक बैठक में 5 डेज ही कर पाई थी, तो 5 आउट ऑफ 7। और मुझे तमिल हर रोज एक पेज रीड करनी है, तो मैंने उसे 6 आउट ऑफ 7 है। आप 7 में से 7 नहीं होगा तो क्या खुद पनिशमेंट क्या करेगा वो बाद में बताना। केशव ज्यादा बताएगा। नवनीति दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट नियम था कि मुझे कलम पर ब्रेक नहीं करनी है, तो मैंने 7 आउट ऑफ 7 था, मैंने ब्रेक नहीं की। सेकंड नियम में था कि मुझे लेजी नहीं होना है, तो मैं लेजी नहीं हुई थी, तो उसमें भी 7 आउट ऑफ 7। थर्ड नियम में था कि मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, वो मैंने नहीं की थी, तो 0 आउट ऑफ 7। थर्ड मेरा फोर्थ नियम था ईयर एक्सरसाइज, वो मैंने 2 दिन की थी, तो 2 आउट ऑफ 7। संसाधन मैंने 3 डेज किए थे, तो 7 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 7। आरुष, जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट नियम ये था कि मैं रोज जो मैम कराए उसको रिवाइज करूं, और मैंने 7 आउट ऑफ 6 किया था। 6 आउट ऑफ 7 ऐसे बोलो। 6 आउट ऑफ 7 किया था। और सेकंड कलम यह थी कि मैं रोज एक्सरसाइज करूं, तो इसमें भी 6 आउट ऑफ 7 है। और
विधि प्रार्थना मेरा तीसरा गोल ये था कि मैं रोज विधि प्रार्थना करूं और इसमें भी 6 आउट ऑफ 7। ओके, और बच्चे लोग आरुष, दर्शना, दरअसल आप लोग जल्दी क्यों नहीं आते हैं? हाँ, वो आज ध्रुव को आने में लेट हो गया इसलिए। क्या हुआ था? आज ध्रुव को आने में लेट हो गया था। क्या आने में? ध्रुव को मेरे घर पे आने के लिए लेट हो गया था इसलिए। किधर आप किधर मोदी को मिलने गया था? नहीं, तो मैं तो मेरे घर पे था, मतलब वो अपने घर पे था, मतलब वो मेरे घर पे आया इसलिए वो देर हो गई उसको। तो ध्रुव आए का नहीं आएगा, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आप सत्संग आपके लिए बैठता है कि ध्रुव के लिए बैठता है? हाँ, मेरे लिए। तो दरअसल आपको तो बहुत एक्सक्यूज मिलता है, और दरअसल और खुश आपकी जल्दी क्यों नहीं आता है? और पद गाते तो सीखने का है। आप आज आप क्या हो? आज हम बाहर हाँ, आज हम बाहर गए थे, कल से नहीं लेट होगा। तो क्या हो गया? तो मम्मी पापा बोलने का सत्संग में आने का टाइम पे, अदरवाइज मत आओ। हाँ? मम्मी पापा को टाइम नहीं है, मालूम नहीं है सत्संग का टाइम? है, वो बिजी थे। हाँ, तो वैसे तो मत आने का सत्संग। बोले पापा बोल कर कि दादा बोलते हैं टाइम से नहीं आता, तो नहीं आने का। कल से आएंगे। पापा मम्मी बिजी होता है और सत्संग का टाइम नहीं रख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, कल 10 से टाइम मिनट जल्दी आने का, क्योंकि अभी पद हम नया नया पद करते हैं, तो सिर्फ ये चेन्नई वाले और अहमदाबाद वाले ही गाते हैं, सबको गाने का है। हाँ, और रजनी दादा दरअसल तो वो बोलता हाय हाय करता है, वो कुछ करता नहीं। बोलो कुछ हाल। रजनी दादा, आज हम बाहर वो मंदिर भी गए थे तो इसलिए। किधर भी गए, मैं मालूम जीत, आप जा अमेरिका के जाके आओ, हमको नो प्रॉब्लम। पर सत्संग का कल से टाइम, आएंगे टाइम। सत्संग का टाइम मंदिर गया था कि आपका वो चीफ मिनिस्टर मिलने गया था, वो नो प्रॉब्लम। कल से टाइम पे आएंगे। हाँ, आपको पापा को बोलना कि टाइम 10 मिनट, एवरीबडी मस्ट कम 10 मिनट्स अर्ली, 15 मिनट्स, नो 15 मिनट्स अर्ली, क्योंकि अभी सबको ये पद सीखने का है, गाने का है। एवरीडे ये चिनाई गाते हैं उन लोग, एवरीडे 15 मिनट्स अर्ली आते हैं। और दरअसल आपने आज चार्ट भेजा था? हाँ, मैंने भेजा था। ओके, क्या रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये है कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है। मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे हिस्ट्री में इम्प्रूव नहीं करना है। रिपोर्ट दो, गोल तो मालूम है सबको, रिपोर्ट दो। लास्ट 7 डेज में कितना हुआ? हाँ, लास्ट 7 डेज में मैंने एक्सरसाइज, मतलब लास्ट 7 डेज में मेरा 7 आउट ऑफ 9 हुआ था, और हिस्ट्री में मैंने 9 आउट ऑफ 9, और मेरा तीसरा गोल सच साधन का, वो भी मैंने 9 आउट ऑफ 9। हिस्ट्री में 9 आउट ऑफ 9 आपको कैसे बोल सकता है 7 आउट ऑफ 7? मतलब मैं डेली वो पढ़ता था इसलिए। आपको मालूम तो नहीं आप क्या पढ़ते हैं? आज पढ़ा था नहीं, आज नहीं पढ़ा था। तो कैसे हो गया 7 आउट ऑफ 7? कल पढ़ा था? हाँ क्या पढ़ा था? हाँ, वो कल मैंने आपको बताया था। वो परसों बताया था। हाँ, तो बताया तो बताओ ना अभी। और हाँ, आपका कल। पढ़ के स्टोरी खुद बनाया? हाँ, आज मतलब कल मैंने ये पढ़ा था कि मतलब एक इंग्लिश में राजा बोलो, था। इंग्लिश में बोलो। Yesterday I had learned that there was a king who came to the, means there was a person who came to the king's palace, and वेट, आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ऐसे वो है कि देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज अ किंग? नहीं, मतलब वो पूरा, मतलब ऐसे याद नहीं है, बट तो ओन वर्ड में याद है। आप स्कूल में पढ़ते हैं कि क्या करते हैं? हाँ,
केशव दादा ये हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किंग का नाम मालूम है, मैन का नाम, हिस्ट्री में सब आते हैं नाम। नो वंडर आपको इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में। कल अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर करके हाँ। हाँ। इसलिए आपको हिस्ट्री में कभी पासिंग मार्क्स भी नहीं देना मांगता है आपको। ओके दर्शना। हाँ जय सचिदानंद, मेरा फर्स्ट नियम ये था कि मुझे 6 बजे उठना है, तो उसमें मेरा 9 out of 7 है, मतलब सॉरी 8 9 out of 7, हम 7 की 6 बात out है। of 7 है, 6 out of 7 है, क्योंकि मैं आज नहीं उठी थी। और मेरा सेकंड नियम ये है कि मुझे सारा होमवर्क टाइम पे फिनिश करना है, तो उसमें मुझे 7 out of 7 है। और मेरा थर्ड नियम यह है कि मुझे सारे संसाधन डेली करने हैं, तो उसमें 2 out of 7 है। खुशहाल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम ये है कि मुझे जो मैम स्कूल में करवाए तो वो घर पे आके अच्छे से होमवर्क और चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो उसमें मेरे 9 out of 9 है। और मुझे हर रोज कीर्तन भक्ति करनी है, तो उसमें मेरा 7 out of 1 है। और मुझे संसाधन सिंसियरली करने थे, तो उसमें मेरा 5 out of 9 है। 9 किधर से आया? मतलब 5 out of आप बहुत मस्ती 7। करते हैं। आओ मम्मी को बोलना क्या है, ये ऐसे नहीं चलेगा। ओके केशव दादा बातें करो। ये नियम पढ़ने का कैसे नक्की करते हैं और कितने कैसे पढ़ सकते हैं? आपको दादा ने आपको कितना नियम दिया था आपको? दादा के हाजिरी में तो जो हमको नियम दिए थे वो बहुत ही कड़क नियम थे, और ऐसा अगर हमको सुनने को दादा को मिले ना तो फिर हमको तो अंदर भी नहीं आने दे। क्या था, दादाजी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझाते थे कि नियम क्या होता है, कैसे आदमी नियम से आगे बढ़ सकता है, नियम का मतलब क्या है। एक बार तो दादा ने नियम के बारे में 2 ऐसे एपिसोड में बताता हूँ जहां पर दादाजी ने बताया कि नियम कैसा होता है। तो दादाजी जहां पर पोड़ में रहते थे ना, तो वहां पर सब जैन के सब देरासर थे, और बाजू में फिर दूसरा भी मंदिर था, किधर हनुमान जी का भी मंदिर था। तो वहां पर जो लोग आते हैं ना, तो उनको दादा ऑब्जर्व करते थे कि वो क्या, रात को कितना भी लेट आए हो, रात को बारिश गिरा हो, पूरा पानी भर गया हो, कैसा भी सिचुएशन आया हो, वो मंदिर में सुबह को दर्शन करने के सिवाय अपने जॉब पे नहीं जाते थे, घर पे नहीं जाते थे। तो वो दादा ऑब्जर्व करते थे। तो एक बार दादाजी ने सत्संग में ये एग्जाम्पल दिया कि नियम कैसा होता है कि मुझे हनुमान दादाजी का दर्शन करने का है, फिर कितनी भी चाहे गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, फिर कितनी भी बारिश गिरती हो, छतरी लेके छतरी के नीचे आके फिर वो बाजू में रख के फिर दर्शन करके फिर जॉब पे जाएंगे, फिर घर पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, धरती इधर की उधर हो जाए। तो दादा वो ऑब्जर्व करते थे कि नियम इसको बोला जाता है कि मुझे दर्शन करने जाना है तो कुछ भी हो जाए। तो एक एग्जाम्पल ये दिया। फिर एक बार हमारा आप्तो पुत्रों के साथ एग्जाम्पल हुआ। क्या हुआ कि कितने आप्तो पुत्र बड़ौदा में नहीं रहते थे, बहुत सारे आप्तो पुत्र खंभात में रहते थे, कोई अहमदाबाद रहते थे, कोई कहाँ पर रहते थे, कोई बॉम्बे रहते थे। तो उनका कैसा नियम होता था कि उन्होंने सब आप्त पुत्र जो आउट ऑफ स्टेशन रहते थे बड़ौदा से, तो उन्होंने एक पास बना दिया था, ट्रेन का पास बनाया, किसी ने बस का पास बनाया। तो वो कुछ भी हो जाए, दादाजी अगर बड़ौदा में है तो वो एक भी दिन मिस नहीं करते थे। तो दादाजी को ये पता होता था कि ये लोग रेगुलर आते हैं। तो कभी दादा बहुत दिन भी हो जाए तो कभी पूछते नहीं थे कि आप आज भी अहमदाबाद से आए,
आप क्योंकि दादा तो जानते थे कि ये अहमदाबाद का आपका पुत्र है, ये खंभात का है, ये कहाँ से है, ये बॉम्बे से है, तो वो रोज आके दर्शन करके जाते थे। तो दादा कभी पूछते नहीं थे। पर एक बार एक आपका पुत्र नहीं आया, तो फिर दादा ने कुछ पूछा नहीं किसी से कि क्यों नहीं आया, क्या आया। तो फिर दूसरे दिन उनसे पूछा कि दादा, दादा ने पूछा कि क्या हुआ, कल तुमने दर्शन करने नहीं आया। तो बोला, दादा मैं ऐसा दर्शन करने को निकल रहा था, फिर मन में ऐसा हुआ कि चलो आज मैं तो रोज दर्शन करने को जाता हूँ, तो आज मैं नहीं जाता हूँ। तो उसको मन में ऐसा विचार आया। तो बोला, ऐसा ऐसा आपको विचार आया कि आज का दिन मैं नहीं करता हूँ, रोज तो मैं दर्शन करता हूँ। तो दादाजी ने बताया कि जिस दिन भी आपका मन ऐसा बोले कि आज मुझे नहीं जाना है, या मैं थका हुआ हूँ, या आज दर्शन करने को नहीं जाता हूँ, तो उस दिन मन की बात नहीं सुनने की, उस दिन तो कंपलसरी आने का। क्या बोला? जिस दिन हमारा मन ऊंधा करने को बोले, जिस दिन मन बोलता है कि आज का दिन चलेगा, तो उस दिन क्या करने का, मन का कहना नहीं सुनने का, और उस दिन कंपलसरी दर्शन करने को आने का। तो फिर आपका पुत्र ने कान पकड़ा, हाँ दादा, ये तो मन की बात की वजह से मैं कितना ज्ञानी पुरुष का दर्शन आज मिस कर दिया। वो दादा बार बार बोलते थे कि अबजो रुपया खर्चे तो भी दर्शन नहीं हो मिलता है, तो ऐसा तुम दर्शन आज कैसे मिस कर दिया? क्योंकि आपको वैल्यू नहीं है। जिस दिन आपको इस जो चीज आपको नियम से करने की वैल्यू समझ में आएगी, उस दिन एक भी दिन आपका मिस नहीं होएगा। आप सब लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 7, 5 नहीं होएगा, 3 नहीं होएगा, 2 नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपने मन की बात सुनते हो। मन जैसा बोलता है, आज सुस्ती है तो चलो छोड़ो न, आज नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, इसके वजह से आपका नियम रोज टूटता रहेगा। और जिस दिन इसकी वैल्यू समझ में आएगी, इसकी कदर समझ में आएगी, इसमें से क्या हमको लाभ मिलता है, इसमें कैसे हमारी प्रगति होती है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, उस दिन दादाजी बोलते एक भी दिन आपका मिस नहीं होएगा और आप नियम में अव्वल हो जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे। फिर जिस दिन से ये दादा ने बात समझाई कि जिस दिन मन ऊंधा करने को बोले उस दिन कंपलसरी आने का, तो उसके बाद सब आपके पुत्रों ने नियम लिया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी कभी कर्फ्यू भी हो जाए, तो कर्फ्यू में भी हम दादाजी का दर्शन करने को आते थे। गली गली में से निकलते छुपते छुपते ऐसा करके भी आ जाते थे। क्योंकि अगर हमारा निश्चय पक्का है तो हमको सब रास्ता भी सामने से मिलेगा। अगर हम पुलिस वाले को भी बोल देते थे कि हमें हमारा ज्ञानी पुरुष भगवान के दर्शन करने को जाने का है, अगर आप हमको अलाउ करो तो हम बहुत छुपके छुपके से चले जाएंगे। तो अगर हमारी सच्ची भावना होती थी तो पुलिस वाला कर्फ्यू में भी हमको दर्शन करने को अलाउ करता था। हमारा नियम कैसा है कि हमारा भाव होगा तो कुदरत हमको हर तरह से हेल्प करेगी, हर 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 जगह से हमको हेल्प करेगी। हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए, और जब हम मन की बात नहीं सुनेंगे, उसके बाद आप देखो कैसे आप नियम में आ जाते हो। ख्याल आ रहा है सबको? हाँ। हाँ। तो अभी आपसे आपको नियम लेने का, दादाजी के सामने रोज प्रतिक्रमण करने का कि मेरे से नियम का पालन नहीं हो रहा है, मैं मेरे मिस कर देता हूँ, आउट ऑफ 7 आउट ऑफ नहीं होता है, तो ये दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो और मैं ऐसा भाव करूं, और आप मेरे पे ऐसी आशीर्वाद दो ताकि मैं हर किसी नियम को पालन करूं, सिंसियरिटी से रहूं, और हर काम में मैं सिंसियर होके आपके आशीर्वाद के लायक बनूं, और आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कहीं किसी भी टाइम पे कोई भी नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करूं। ऐसी दादा के सामने शक्ति लेने का। तो दादा शक्ति भी देंगे, हमारा मन को भी मजबूत करेंगे और हमारा निश्चय भी पक्का करेंगे। पर आप दादा से शक्ति नहीं मांगोगे तो दादा भी हेल्प नहीं करेंगे। दादा किसको हेल्प करते हैं? जो अपने आप को हेल्प करते हैं। समझ गए? समझ गए सब? हाँ। तो हाँ। क्या बोला केशव दादा ने? विधि दीदी, नवनीत दीदी,
जय जय सच्चिदानंद। कैसे दादा ने बोला कि जब हम हमारे नियम में पूरे सिंसियर रहते हैं और उसे हार्टिली पूरा करते हैं तो कुदरत भी हमें मदद करती है। वेरी गुड। हमें दादा भगवान हाँ बोलो बोलो बोलो, नो दीदी दीदी, दादा भगवान। हाँ हमें दादा भगवान से रोज शक्ति मांगनी चाहिए कि हम हमारे नियम में पूरे सिंसियर रहें और कभी भी हमारे नियम में छुट्टी ना लें और उसे पूरे सिंसियरिटी हार्टिली और अटेंशनली पूरा करें। वेरी गुड। ये सब रिपीट करो, यही रिपीट करने का, दूसरा कुछ। क्या बोला प्रहर? हाँ, जय सच्चिदानंद। केशव दादा ये बोले कि हमें हमारा जो नियम है वो पक्का रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश भी हो, हमें जो हमारा नियम है वो पूरा करना ही चाहिए। ओके, सो अभी नवनीत विधि दीदी आप क्या बोलते थे? हाँ, अगर हमारा मन हमें हेलो, ओके ओके ओके। तो बच्चों लोग, आपने नियम नहीं पढ़ा, दैट मीन्स नक्की नहीं किया, सीरियस नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलता है। मोनिका? मिलता है। हाँ मिलता है बट मैं टाइम निकालती नहीं हूँ उसके लिए। नहीं नहीं, ऐसे टाइम मिलता है कि नहीं है नियम पढ़ने के लिए? मिलता है। खुशी? हाँ मिलता है। क्यों नहीं होता है अंडर 7 out of 7? मैं कवर करती हूँ। सीरियस नहीं है। अभी सब बच्चे लोग, अभी दाता को प्रार्थना करो कि नेक्स्ट संडे सब 7 out of 7 मांगता है। नो एक्सक्यूजेस, ओके? ओके, अभी केशव दादा, हम अभी क्वेश्चन नहीं है तो पद सुनेगा अभी।